Dear students, let us continue with our ongoing topic agencies involved in teacher education. In the last video, I have already discussed about state level agencies of involved in teacher education. In this video, let us proceed further with the national level agencies involved in teacher education. As we all know that education is in the concurrent list. So, the state as well as the center has a power to control the system of education and the educational things in the country. So, there are some national agencies, as I have already named them in the first video of this series. So, let us discuss in brief one by one, and as I have already said, as it is as the focus is on teacher education, the agency's involvement in teacher education, I will restrict my lecture to teacher education only. I will omit all other functions and works of these organizations, these agencies, and only limit it to teacher education. So, let us start with UGC, that is University Grants Commission, Vishwavidyalaya Anudan Ayog. So, its work we can say is to upgrade the standard of teacher education, forming committees for the same. Upgradation of standard of teacher education, वो जो standard है, स्तर है, इसका जो upgradation होता है, ये UGC थोड़ा control करता है. तो there are so many things how to upgrade, that means prescribing the minimum qualifications of the teachers, etc., and it looks into many matters of teacher education also. Those are those teacher education programs, and those are running in the universities. So, it has directly it's a UGC has a direct control over university. So, directly it is controlling it is regulating the programs of teacher education run in the universities. Second one, if you go to provide awareness of new innovation and research in teacher education. Now, see research as I have already discussed in University Department of Education in the state level. So, on all the universities in India are regulated by the UGC. So, all the research work in the field of teacher education is maximum of the works are through the universities. So, these findings of the researches is being disseminated by the UGC by providing awareness. अवेयरनेस लाके जो भी रिसर्च होता है यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और ये यूनिवर्सिटीज़ का जो रिसर्च का फाइंडिंग है वो इस फाइंडिंग को डिसेमिनेट करता है, मतलब प्रसार करता है, प्रचार प्रसार होता है इस चीज़ का, और लोगों में जागरूकता फैलती है. ग्रांटिंग ऑफ फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप एंड टीचर फेलोशिप फॉर एनकरेजिंग रिसर्च एंड टीचिंग. रिसर्च और टीचिंग के लिए फेलोशिप ग्रांट करता है UGC. Provisions of grants and funds to universities, lecturers or university professors to attend national seminars and international seminars, conferences, etc. So, as to promote this teacher education program along with other branches also, this teacher education professors and other lecturers, they are being promoted by getting grants to attend such type of programs for the development. Funding of teacher education courses at university level. So, all the university courses are being funded by UGC, so as the teacher education courses. Wherever there is a university department of education, the funds come from the UGC. Appointing visiting professors from across the universities, professors for interchange programs and delivering lectures. So, this इंटरचेंज प्रोग्राम में जो होता है मैंने अमंग द इंस्टीट्यूट्स, अमंग द यूनिवर्सिटीज़, तो ये UGC उसको अपॉइंट करता है कि हु विल बी द visiting professor in certain other universities, so that their expertise can be shared nationwide.
अपॉइंटिंग रिसर्च एसोसिएट फॉर पोस्ट डॉक्टरल वर्क। पोस्ट डॉक्टरल वर्क जो रिसर्च का जो हाईएस्ट लेवल है, उसमें जो रिसर्च एसोसिएट है उसका अपॉइंटमेंट जो है यूजीसी के द्वारा होता है। डिटरमाइनिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स of the university level for teacher education courses also. Now see, टीचर एजुकेशन कोर्स का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो क्वालिफिकेशन का, वो एनसीटी तय करता है, लेकिन यूजीसी का भी उस पर रेगुलेशन रहता है। जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, अलॉन्ग विद द एनसीटी नॉर्म, दे ट्राई टू फॉलो द यूजीसी मिनिमम qualifications, minimum requirement of qualification for the teachers appointment and promotion. तो ये जो promotion और appointment यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में होता है, तो along with एनसीटी वो यूजीसी को भी फॉलो करते हैं। तो वो भी जो स्टैंडर्ड दूसरे कोर्सेज के लिए रखा है अपॉइंटमेंट के लिए, वो टीचर एजुकेशन के लिए भी रखा है along with the एनसीटी norms. So this is all about the यूजीसी का ये रोल है। मैंने ब्रीफली कहा, यू कैन फाइंड इन नेट, बहुत सारा मटेरियल है, इट्स अ फैक्ट, सो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट फ्रॉम द अदर सोर्सेज। नाउ कम टू नैक। दिस इज नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, दैट इज राष्ट्रीय मूल्यांकन एंड प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये क्या करता है, इसमें जैसे नाम से ही सजेस्ट होता है, मूल्यांकन और प्रत्यायन करना, प्रत्यापित करता है और मूल्यांकन करता है। क्या मूल्यांकन करता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये एसेस करता है, उसका अवलोकन करता है और आकलन करके उसको एक्रेडिट करता है कि ये लेवल पे, मैंने एक लेवल देता है। सो कौन सा लेवल, ए लेवल, बी लेवल, ए प्लस, बी प्लस, सी, तो इस तरह से ग्रेडिंग होता है कॉलेज। उससे आपको स्टैंडर्ड का पता चलेगा, माने एक इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है। अगेन ये जो एक्रेडिटेशन होता है, ये जो प्रत्यायन होता है, वो हर 5 साल में एक बार होना चाहिए और होता भी है। और वो जो ग्रेड आपको जिस इंस्टीट्यूट को मिला है, जिसमें टीचर एजुकेशन कोर्सेज चल रहा है, वो कोशिश करते हैं कि 5 साल बाद और मैंने सेकेंड साइकिल में और थोड़ा उसका ग्रेडिंग बढ़े, उससे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन है, ये हर इंस्टीट्यूशन के लिए बाध्यता है कराना। और जहाँ जहाँ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खुला है, तो वो इंस्टीट्यूशन को भी कराना है। और जहाँ अगर बीएड लेवल का पढ़ाई हो रहा है, अगर वो एमएड लेवल का पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं वैसे इंस्टीट्यूशन में, सो दे मस्ट हैव अ एटलीस्ट सम जो एक्रेडिटेशन होना उसका ज़रूरी है, और एक लेवल मेंटेन करना। अगर वो लेवल में आता है तभी वो उसको मान्यता मिलेगा कि आप परमिशन मिल सकता है कि आप एमएड शुरू कर सकते हैं, माने हाईएस्ट डिग्री शुरू कर सकते हैं। और जहाँ जो मल्टी कोर्सेस इंस्टीट्यूशन में अगर टीचर एजुकेशन चल रहा है, तो उसको भी आप अलग से नैक करा सकते हैं, मैंने नैक का ग्रेडिंग ले सकते हैं, नैक का असेसमेंट करा सकते हैं, तब जाके वहाँ पर भी पीजी लेवल का पढ़ाई शुरू होने का बात हो सकता है। तो इस तरह से वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है कि सारा चीज़ देखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, ये सबको देख के वहाँ का जो प्रैक्टिस उस इंस्टीट्यूट का और वहाँ का जो प्रोग्रेस है उसको लेके दे हैव देयर ओन रेटिंग स्केल एंड दे रेट and grade the institution in 4 different level A B C D। तो ये जो A B C तो वो उसमें देते हैं, तो A+ भी मिलता है। तो जिस इंस्टीट्यूशन को A ग्रेड या A+ मिलता है उसको अच्छा माना जाता है। ग्रेजुअली जो लोग हैं वो लोग डेवलपिंग स्टेज में है, C से B, B से A, इस तरह से होता है। तो दिस इज़ ऑल मेंट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये जो NCT के साथ इनका एक MOU साइन हुआ है, जो कि ये कहता है कि हर इंस्टीट्यूशन को, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नैक का असेसमेंट और एक्रेडिटेशन लेना ज़रूरी है। सो फॉर मेन मोटो इज़ टू maintain the quality of these institution running teacher education courses. It is meant for other courses also, as because we are focusing upon teacher education, so I am saying about teacher education. So ये teacher education का quality assurance में इसका भूमिका है। ये एजेंसी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखता है, गुणवत्ता को एश्योर करता है।
Next one is NCERT, National Council of Educational Research and Training, that is राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसमें इसका रोल भी है, इन जनरल स्कूल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें टीचर एजुकेशन का भी माने ये जो है टीचर एजुकेशन में भी इन्वॉल्व होता है। जैसे क्या करता है दिस ऑर्गेनाइजेशन NCERT एपेक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल लेवल पे है, दैट इज मेंट फॉर school education as well as teacher education का some parts are controlled by NCERT. So this arrange and organize pre-service and in-service training at the higher level. तो ये pre-service in-service training arrange कराता है, organize कराता है, तो ये उसका कार्य है। Then it organize extension centers in training institute with cooperation of state level, state governments and extend facilities pertaining to new methods and technologies among them. तो ये जो नया नया मेथड आता है, तो ये जो क्योंकि हम अभी अब बोले कॉन्करेंट लिस्ट में, तो नेशनल लेवल से जो भी आता है थ्रू NCERT आता है, वो SCERT को पास करता है, स्टेट गवर्नमेंट तक आता है, वो सारा प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स जो भी है वो लागू होता है स्टेट में रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन ऑल्सो। देन कम्स इट एस्टेब्लिशेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NIE का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसमें, जिसमें कि वो हायर जो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टीचर्स को मैंने हायर लेवल में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है इसमें, और उसके बाद वो रिसर्च पे बल देता है। NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ एजुकेशन टीचर एजुकेशन का वेरियस एस्पेक्ट्स को लेके रिसर्च होता है, और ये रिसर्च से फिर डेवलपमेंट की ओर सोचता है। तो NCERT इज डेडिकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड ब्रिंगिंग अबाउट क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन एंड मीनिंगफुल टीचर एजुकेशन इन द कंट्री। सो इट मॉनिटर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NIE एंड RIEs, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फंक्शनिंग है ऑफ द NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसको मॉनिटर करता है, वो देखता है कि वो सही रूप से काम, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो NCERT का विंग है। RIE मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान, जो कि पहले 4 था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों जोन में बटा हुआ था। तो जैसे भुवनेश्वर में, देन अजमेर में, भोपाल में, मैसूर में था, अभी शिलोंग में हो गया। 5 RIEs आर देयर रीजनल। मैंने ये जो है टीचर एजुकेशन के लिए ही मैंने ये समर्पित है ये इंस्टीट्यूशन, और ये NCERT का एक विंग है, एक बॉडी है जो कि टीचर है। तो इसका जो कंट्रोलिंग पावर, जो RIE को जो कंट्रोल करता है, वो डायरेक्टली NCERT कंट्रोल करता है। मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम द अपॉइंटमेंट्स and all administrative things are controlled by the NCERT. So indirectly NCERT is involved in this teacher education also, because it is involved in school education. So they have got a coordination among school education and teacher education. प्रत्येक RIE में एक डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल भी होता है, जहाँ पे उसको आप लैबोरेटरी स्कूल्स बोलते हैं, जो कि RIE का कैंपस में रहता है। जो भी रिसर्च करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है स्कूल में, जो भी रिसर्च का निष्कर्ष आया, तो वो स्कूल्स में पहले वो लोग अप्लाई करके देखते हैं। रिसर्च करना है तो दे नीड नॉट गो फॉर आउटसाइड स्कूल, दे हैव देयर ओन स्कूल एंड देयर द रिसर्च दे यूज टू कंडक्ट। then prepare and publish study material for students and related teacher education courses. जो स्टडी मटेरियल भी है ये भी पब्लिश होता है, और NCERT जो है जर्नल भी पब्लिश करता है रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन कोर्सेज एंड टीचर एजुकेशन एस्पेक्ट। तो ये चीज़ भी वो जर्नल एंड बुक्स पब्लिश करता है टू strengthen the knowledge base of teacher education. So this is all about NCERT in brief. Let us now see the role and function of NIPA, NIEPA, that is National Institute of Educational Planning and Administration, that is राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान. It's having a role in teacher education by providing training of educational planning and administration to develop the abilities and competencies of in the educational administration through the in-service programs. Now see, administration is a part of every
organization. So, in teacher education also there is something that needs administration. So, the in service teacher educators they are being trained in educational planning and administration in this institute. तो यहाँ पे ये चीज़ दिया जाता है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल एंड रीजनल लेवल टू डेवलप एफिशिएंसी एट देयर लेवल. तो ये नेशनल लेवल में भी ट्रेनिंग देते हैं, ये लोग स्टेट लेवल में भी आके ट्रेनिंग देते हैं. इट ऑल्सो इंटीग्रेट्स एजुकेशनल स्टडीज़ एंड रिसर्च within the area of educational planning and administration and make coordination in their activities. It integrates the educational studies under the area of educational planning और administration का जो एरिया है वो उसमें वो क्या कहते हैं इंटीग्रेट करके रिसर्च स्टडीज़ करवाते हैं एंड ये जो एक्टिविटीज़ है उसमें वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं. It also encourages the teachers to solve the problem of educational planning and administration by organizing seminars and workshops. जो भी problems है it has to be addressed through the workshops and seminars and it is being organized by NIPA. तो यहाँ पे जो teachers है, teacher educators है, they try to solve the administrative and planning problems in these workshops and seminars. And it also review the educational planning and administration of other countries and use such reviews to develop our educational system and solve educational problem. दूसरे देशों में जो चल रहा है एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिशन, वहाँ का भी मैंने कुछ आइडिया लेके उसको रिव्यू करके अपने देश में उस चीज़ को लागू कराना ये नीपा का काम है. मतलब टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग पोर्शन सो दैट वी कैन मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन. सो नीपा का ये कार्य है टीचर एजुकेशन में. Now come to the most important agency, that is NCT, that was established in the year 1995. So you must have read in detail about it. I am focusing a little bit upon the roles and functions. So NCT, National Council for Teacher Education, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद. It is a statutory body now. तो ये जो बॉडी बना है पार्लियामेंट का आदेश से बना है और ये इसका काम क्या है, ये गुणवत्ता शिक्षा को स्थापित करने में इसका अहम भूमिका है. माने ये जो सारा जो शिक्षा का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र को यही ऑर्गेनाइजेशन, यही काउंसिल जो है वो उसका पूरा माने फर्स्ट हैंड जो जिसका बोलते हैं मॉनिटरिंग एंड डूइंग एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय एनसीटी. सो ये क्या करता है, तो एक थोड़ा सा इसको देखते हैं. सो इट गिव्स अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. बिना इसका अप्रूवल का, बिना इसका रिकॉग्निशन का नन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, none of the organization can start teacher education program at any level, that is starting from diploma to degree to masters और माने इस प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन कोर्सेज जो है ना, डिप्लोमा, डिग्री एंड मास्टर्स, ये शुरू नहीं हो सकता जब तक यहाँ से आपको संबद्धता प्राप्त ना हो, माने आप वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड ना हो. तो वो रिकॉग्निशन देने में होता है. तो रिकॉग्निशन जब देते हैं तो बहुत सारा चीज़ वो देख के देते हैं, तो उनका जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स है उसको जब फुलफिल करेंगे तभी वो मिलता है. Then it makes recommendation to the center and the state government, universities, the UGC and the institution in the preparation of plan and program in the field of teacher education. जो भी प्लान प्रोग्राम है ये रिकमेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट को ये करना है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन को ही देखता है. अभी तक जो हमने जो देखा वो विथ अदर फील्ड एरिया ऑफ एजुकेशन उसका टीचर एजुकेशन रोल था, लेकिन ये डायरेक्टली टीचर एजुकेशन के लिए बना है और ये सारा जो प्लान प्रोग्राम है यहीं से निकल के आता है एनसीटी से. तो ये जो है जो भी प्लान प्रोग्राम होता है ये रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को, यूजीसी को और दूसरे इंस्टीट्यूशन को, जो कि करता है. सो मैंने जितना भी प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द सिलेबस मैंने करिकुलम एवरीथिंग जो है ना यहाँ पे डिज़ाइन होता है और ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट तक जाता है. वहाँ से फिर वो
लागू होता है, उनका अनुमोदन से लागू होता है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो टीचर एजुकेशन को एक तरह से पूरा रेगुलेट करता है ये। तो द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो ये जो एक कोऑर्डिनेट करता है और मॉनिटर करता है टीचर एजुकेशन जो भी चल रहा है, और ये देश में कैसे डेवलपमेंट होगा टीचर एजुकेशन का, ये इस चीज़ को देखता है। तो देखिए टीचर एजुकेशन एक माना ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स एज पर द पॉपुलेशन कभी भी इसका डिमांड ख़त्म नहीं होता है, मैंने कभी ये नहीं होता। तो वो कैसे डेवलपमेंट करते, कैसे गुणवत्ता स्कूली शिक्षा होगा, इसके लिए कार्यरत रहता है। तो शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ये हमेशा मॉनिटर करते रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है हर इंस्टीट्यूट। सो वी आर हैविंग अगेन ये भी जोन में बटा हुआ है, रीजनल जोन्स में, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बटा हुआ है, 4 जोन में 4 रीजनल ऑफिसेस है, इनका रीजनल सेंटर्स है। तो ये एक एक रीजनल सेंटर कुछ कुछ स्टेट्स को अपना एरिया का स्टेट्स को देखते हैं। जैसे ईस्टर्न रीजनल सेंटर पूरा ईस्ट को देखता था, दैट इज मैंने देन इट वाज 13 स्टेट्स को कैटर करता था, जितना भी ईस्टर्न स्टेट है अलॉन्ग विद द अंडमान निकोबार आइलैंड पहले था, अभी अंडमान निकोबार शायद मैसूर के साथ चला गया। तो इस तरह से अपना जोन को सहूलियत के हिसाब से दे यूज टू सी द थिंग्स, मॉनिटर द थिंग्स टू एश्योर द क्वालिटी, मैंने जो भी है फॉलो हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट का ज़रूरत है। देन प्रिपेयरिंग गाइडलाइन विथ रिगार्ड टू मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर द कैंडिडेट्स टू बी एम्प्लॉयड एज टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स एट डिफरेंट लेवल्स। मैंने बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं ना टीचर एजुकेशन का, मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमा, डिग्री एंड डिग्री में अब देखिए फिजिकल एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, नॉर्मल एजुकेशन है, तो इस तरह से बहुत सारा चलता है। तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट का, वो यही तय करता है। अब देखिए मिनिमम क्राइटेरिया था कि एमएड होना चाहिए पहले, तो देर सो मैंने हम बता, अभी क्या कर रही है, नेट मिनिमम कर दिया कि नेट या पीएचडी होना चाहिए। तो इस तरह से टाइम टू टाइम वो बदलाव लाता है, अगेन टू हैव ए चेक ऑन द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। Then preparing a guideline and specified requirements for starting new courses and programs under teacher education. तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो कोई दूसरा टीचर एजुकेशन का कोर्स चलाना चाहता है, तो उसके लिए भी उसका जो मापदंड है उसको पूरा करना पड़ेगा। ये जो उसका जो गाइडलाइंस है, स्पेसिफाइड जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर, तभी वो मान्यता मिलेगा। तो ये भी देता है कि अगर आप सपोज बीएड चला रहे हैं, एमएड खोलना चाहते हैं, तो एमएड में क्या क्या और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगा, कितना स्टाफ आपको करना है, सारा चीज़ वो रिक्वायरमेंट जो है वो यही स्पेसिफाई करता है। ऐसा नहीं कि एक टीचर एजुकेशन कोर्स चला रहे तो आप कुछ भी चला सकते हैं। तो प्रत्येक कोर्स के लिए आपको वहाँ से रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा, उनका रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना पड़ेगा, तब जाके आपको मैंने टीचर एजुकेशन का नया कोर्स आपको वहाँ मिलता है, अनुमति मिलता है कि आप यहाँ चला सकते हैं। डेवलपिंग ए गाइडलाइन फॉर जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एक गाइडलाइन जो है एनसीटी ही तैयार करता है। देन सुपरवाइजिंग द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, मैंने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रनिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो ये सुपरवाइज भी करता है। ऐसा नहीं कि एक बार मान्यता दे दिया तो आप निश्चिंत होकर चलाइए, तो हर समय मैंने हर कुछ समय के अंतराल में वो उसको मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, ताकि जो गुणवत्ता है शिक्षा का वो बरकरार रहे। आप देखे होंगे बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हुआ, ये एनसीटी से आया कि बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस करना है आपका, हम लोग अप्रेजल भेजना पड़ता है। टीचर एजुकेशन कोर्स जहाँ जहाँ चल रहा है, तो आपने क्या किया साल भर में, क्या क्या आपका हो रहा है, कितना दिन क्लासेस हो रहे हैं, तो ये सारा चीज़ उनको अप्रेज करना पड़ता है। देन ओनली मैंने ये जो क्वालिटी का बात है, अगर ये पूरा छोड़ दिया जाए तो इतना प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए, इंस्टीट्यूशन खुल गए, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। सो दे आर जो गाइडलाइंस है उनका वो समय समय पर परिवर्तन होता है, और कुछ मैंने वो लोग और रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि कैसे क्वालिटी को एनहांस कर सके थ्रू देयर रिस्ट्रिक्शंस। नाउ कम टू द आरसीआई, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज़ राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद। ये क्या है ना, अब देखिए इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि ये जो शिक्षा कार्यक्रम है इसमें बहुत सब तरह का आ जाता है, फिजिकल एजुकेशन से लेकर नॉर्मल एजुकेशन तक। बट व्हेन इट कम्स टू द स्पेशल एजुकेशन एस्पेक्ट,
ये जो भी स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है इसको ये इनके रेगुलेशन का अंडर में नहीं आता है, मैंने इनके पास उस चीज़ का कंट्रोल नहीं है। इट गोज़ टू द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, माने संविधानिक निकाय है भारत सरकार का, जो कि 22 जून 1993 को इसका ये एक बना था, मैंने संविधानिक निकाय बना था। इसका ये जो सेटअप हुआ था 1986 में हुआ था एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी। फिर उसको बाद में 1992 में RCI एक्ट पास करा के उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। 93 में ये फाइनली एक संविधानिक निकाय हो गया। ये क्या करता है? इट मेंटेन्स ए सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ ऑल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। जितने भी क्वालिफाइड पर्सनल है, पर्सनल मतलब व्यक्ति है इस फील्ड में, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास और स्पेशल एजुकेशन में जो लोग हैं उनका एक तो रजिस्टर मेंटेन करता है, एक तो डेटा मेंटेन करता है। और ये इट ऑल्सो ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ रनिंग मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और यू कैन से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अब जितने भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए जो भी स्कूल्स है, सपोज ब्लाइंड स्कूल्स है जहाँ ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं, डेफ एंड डम स्कूल्स है, तो इनके लिए भी एक स्पेशल ट्रेनिंग का प्रावधान है। ये जो ट्रेनिंग है वो शिक्षा ये लोग भी शिक्षक मैंने वहाँ से भी इस तरह का शिक्षक बनते हैं, स्पेशल शिक्षक बनते हैं। तो इनका जो है NCT से रेगुलेशन नहीं होता, इनका RCI से होता है। तो ये पूरा उसका जो है वो रिकॉग्निशन ग्रांट करता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। वो लोग ग्रांट मैंने करता है रिकॉग्निशन, मैंने वहाँ अनुमोदन होता है, उस चीज़ का मान्यता प्राप्त होता है और उसके हिसाब से चलता है। जो करिकुलम है यही लोग डेवलप करते हैं और उस हिसाब से ये लोग स्पेशल एजुकेशन का कोर्स चलाते हैं। मैंने जितना तरह का स्पेशल एजुकेशन है, फॉर द ब्लाइंड, फॉर द डेफ एंड डम, फॉर द मेंटली रिटार्डेड, फॉर अदर डिजेबिलिटीज़, फिजिकल डिजेबिलिटी, तो होगा। आप देखिए इग्नो में भी ये शुरू हुआ है कुछ डिस्टेंस एजुकेशन में, दैट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाय द RCI। जहाँ जहाँ ये कोर्स चलता है RCI का रिकॉग्निशन होना चाहिए, तभी जाके आप एक संस्थान में स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। इट ऑल्सो प्रोमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। जितना भी स्पेशल एजुकेशन का, रिहेबिलिट, पुनर्वास का जो रिसर्च अनुसंधान होता है इसी संस्थान के द्वारा होता है और RCI ही उसको कंट्रोल करता है। It also collects information on a regular basis on the education education and training in the field of rehabilitation of people with disabilities from institution in India and abroad। तो भारतवर्ष से और बाहर से भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मैंने रेगुलरली, मैंने frequently they used to collect regarding the education and training of such professionals and such students। अब देखिए ये जो विश्व भर में स्पेशल एजुकेशन का बहुत डिमांड है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में जितने भी स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं, इंडियन टीचर्स वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो लोग इस चीज़ को पढ़ते नहीं है, जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन भी एक फील्ड है, एक ब्रांच है जो कि उसका बहुत बड़ा योगदान है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में। तो मैंने इन जनरल पब्लिक के पास ये अवेयरनेस नहीं है कि इसमें भी हम एक करियर डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो विश्व में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके दे यूज्ड टू ट्रेन द पर्सनल्स। जो हम ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को, वो इस हिसाब से ट्रेनिंग होता है। देन इट एनकरेज कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। जैसे कंटिन्यूइंग